آج بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 25 مارچ 2022 اور جمعے کا دن ہے۔ ہماری آج کی محفل کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آج کا موضوع ہے کمزور قوت ارادی کا علاج۔ بظاہر یہ ایک غیر اہم سا نظر آنے والا موضوع ہے، لیکن اصل میں یہ بہت اہم ہے کہ قوت ارادی، مضبوط قوت ارادی ہی خود اعتمادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کمزور قوت ارادی کا بندہ کبھی بھی خود اعتماد نہیں بن پاتا، اور خود اعتمادی ہی زندگی میں ہر قدم پر، ہر مسئلے، ہر چیلنج سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے، اور ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کا اس کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ آدمی ہر قدم پر ڈر خوف میں رہتا ہے اور ہر قدم پر ناکامیوں کا منہ دیکھتا ہے۔ خود اعتماد آدمی ہر چیز میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پھر خود اعتماد آدمی کی زندگی میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور کمزور قوت ارادی والے کبھی بھی خود اعتماد نہیں بن پاتے، یاد رکھیے گا۔ قوت ارادی کمی کی وجہ سے بے شمار لوگ بہت سے پلان بناتے ہیں، لیکن کسی بھی پلان پر عمل نہیں کر پاتے، اور زندگی میں ناکامیوں کا شکار در شکار ہو کر مسلسل دوسروں سے پیچھے رہتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، غالباً میجک آف تھنکنگ ایک، اس میں ایک آدمی نے کہا کہ میری شخصیت بڑی اچھی تھی، میں بڑا پڑھا لکھا تھا، میرا کمیونیکیشن سکل بڑا اچھا تھا، میں ہر چیز میں بہتر تھا، لیکن میں زندگی میں پیچھے رہتا جا رہا تھا۔ تو پھر میں نے کچھ اپنے دوستوں کو ڈھونڈا جو کامیاب تھے، میں نے ان کی لسٹ بنائی، ہر ایک چیز کو میں نے سب سے جو ٹاپ پہ بندہ تھا اس کو 10 نمبر دیے، کیونکہ ہم 10 دوست تھے۔ جو اس کوالٹی میں سب سے اوپر تھا، مثلاً کمیونیکیشن سکل ہے کہ بات چیت، پھر شخصیت آدمی کی ہوتی ہے، آؤٹ لک ہوتی ہے، جو سب سے ہینڈسم تھا اس 10 نمبر دیے، اس سے کم کو 9۔ تو میں نے دیکھا تقریباً ہر چیز میں پہلے دوسرے نمبر پر آ رہا تھا، لیکن میں زندگی میں ناکام کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، مجھے پتا چلا کہ میں کمزور قوت ارادی کا مالک تھا۔ ہر چیز میں آگے رہنے کے باوجود میرے سارے دوست آگے سے آگے چلتے جا رہے، زندگی میں ترقیاں کر رہے تھے، اور میں ادھر ہی بیٹھا تھا۔ تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری زندگی میں یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرے ایسے بندے جو بھی پلان کریں وہ پورا نہیں کر پاتے، کوئی عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ نہیں چھوڑ پاتے۔ مثلا میرا ایک اسٹوڈنٹ نہیں، میں نے اس کا نام چینج کر دیا ہے، یہاں ضلع چکوال کا ہی رہنے والا ہے، کسی دوسری تحصیل کا۔ وہ شراب کی عادت چھوڑنا چاہتا تھا، وہ شراب نوشی کی لت میں مبتلا تھا، پچھلے 15 سال سے وہ یہ کر رہا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ ایک ایسی اسلام آباد میں ایک ایسا آفس ہے جو ان لوگوں کو یہ آتے چھڑواتا ہے، اس میں 3 سال سے 35-36 لاکھ روپے فیس بھر چکا تھا، اور وہ عادت نہیں چھوڑ رہا تھا، اور وہ مطلب عادت اس پر اتنی حاوی تھی۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ عادات اسے کاغذ پر لکھوائی۔ اچھا، وہ ہدایات جو تھی وہ پہلے بھی اس کو لکھوائی بھی گئی تھی اس گروپ کی طرف سے، تو صرف اس میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا کہ اپنے شرابی دوستوں کو تم نے 3 مہینے بالکل نہیں ملنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ پھر میں نے اسے اپنی کتاب روحانیت، دانش اور حقیقتیں دی، اور اسے ساتھ ورد وظائف دے دیے۔ تو اس کو زندگی میں ایک مقصد مل گیا۔ جب آپ کی زندگی میں ایک مقصد نہ ہو تو آپ پھر ریورس آ جاتے ہیں، پھر اپنی پرانی چیزوں پر آ جاتے ہیں۔ اور اسے کہا دوست کو، نہیں کو، کہ لوزر قسم کے دوستوں کی کمپنی میں لازمی انہیں چھوڑنا ہے تم نے، کسی حالت میں، کسی بھی جو بھی کمپنی ہو، لوزرز کی ہو، ان میں نہیں بیٹھنا ہے۔
विनर्स की कंपनी ढूंढो, उनमें बैठो। इसके बाद ये हुआ कि अगले 2 हफ्तों के अंदर ही वो अपनी इस आदत को ख़त्म कर चुका था। आज तकरीबन 3 साल से ऊपर हो चुके, वो इस आदत का शिकार नहीं हुआ, यानी फिर दोबारा उसने ये काम नहीं किया। यहाँ पे सबक ये है कि आपने हर इंसान को ज़िंदगी में मुस्बत सोच का बताना है और एक मुश्किल नौयत का मकसद देना है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, कमज़ोर कुव्वत इरादी वाले, मजबूत वाले, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। एक इंसान बड़ी अजीब चीज़ है। मसलन एक दिलचस्प मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हम में से बहुत से लोग किसी अच्छे मजहबी रहनुमा मुबल्लिग की बात सुनकर ये अहद करते हैं कि हम कल से बिल्कुल तौबा तायब होकर अपने सीधे रास्ते पर चल पड़ेंगे। शाम को अहद करते हैं, लेकिन सुबह क्या होता है, हम वापस अपनी जगह पर होते हैं, तौबा ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक हमारी बैरूनी शख्सियत, एक हमारी अंदरूनी शख्सियत बन चुकी है। वो अंदरूनी शख्सियत वही है जो हमने सालों में बनाई, वो एक दिन में चेंज नहीं होगी। वही अंदरूनी शख्सियत कमज़ोर कुव्वत इरादी की मालिक है, उसमें आपने फीड कर लिया। तो इसी के साथ ये होता है कि एक आदमी जो कहता है मैंने मुस्बत सोच पढ़ ली और मैं मुस्बत हो गया हूँ, लेकिन उसे जिंदगी में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ता है। ये क्यों होता है? वजह यह है कि वो अभी अंदर से मुस्बत नहीं बना, अंदर उसकी मनफियत भरी हुई है, नाकामियां, मुख्तलिफ चीजें जो उसने फीड की हैं बरसों। इसकी आसान मिसाल जो मौलाना रूम ने एक शेर के बच्चे की दी थी, जो भेड़ों में बड़ा हुआ वो भेड़ ही बन गया था। हम वही बनते हैं जो हम अपने आप को मुसलसल फीड करते रहते हैं। तो आपने अपने अंदर की शख्सियत को शेर की तरफ बनाना है और एक यानी बहुत खुद एतमाद और माशरे में इंतहाई अहमियत के हामिल बावकार शख्सियत का बनाने की कोशिश करें। आप ये बनने के अहल भी हैं। अच्छा, अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल हल की तरफ आएंगे कि चंद एक स्टेप्स जो आपने लेने हैं। अगर आप कमज़ोर कुव्वत इरादी के मालिक हैं तो इसे तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपने सिर्फ आज ही फैसला करना है और इस पर अमल शुरू कर देना है। अगर सबसे पहले आपने इसे लिखना है, अगर आपने ना लिखा तो आपके अंदर की शख्सियत आपको किसी दूसरे काम या शुगल में उलझा देगी, क्योंकि इसके लिए अपने अंदर को तब्दील करना मुश्किल होता है। ये कोई ना कोई शुगल ढूंढ के आपको उसमें उलझा देता है। लेकिन अगर आपने ये फैसला आज ना किया तो आपको बड़े अरसे बाद ये करना पड़ेगा। वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करें। नेपोलियन ने कहा था कि वक्त ही सब कुछ है। मैं जंग तो हार सकता हूँ, वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। मैं हैरान रह गया कि वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता चला कि आप वक्त को इस्तेमाल करके दुनिया में हर चीज़ हासिल करते हैं, लेकिन आप सब कुछ देकर मजीद वक्त हासिल नहीं कर पाते। वक्त को ज़ाया मत करें, फैसला आपने आज ही करना है। इसमें आपने ये करना है, ऐसा कोई भी इरादा करें तो इसके सब मुस्बत मनफी पहलू लिखें। आप 15 पहलू कम से कम देख लें, आपको बासानी मिल जाएंगे। किससे आपकी शख्सियत पर क्या असर पड़ेगा, आपकी फैमिली वालों पे क्या असर पड़ेगा, आपकी बीवी पे क्या पड़ेगा, आपके हल्का अहबाब पे क्या पड़ेगा। उसके जो पॉजिटिव पड़ेगा उसके नेगेटिव फिर 15 आपने लिख लें और ये बासानी मिल जाती है। और आखिर में ये लिखना है कि अगर मैंने आज ये फैसला नहीं किया तो 5 साल बाद मैं इसी दायरे में या खड़ा हूँगा और उस वक्त मैं इससे पीछे जा चुका हूँगा। क्योंकि जब आदमी कोई काम करने का फैसला ना करे और उसे ना करे तो उसकी कुव्वत इरादी मजीद कमज़ोर हो जाती है, मजीद उलझन का शिकार हो जाते हैं और कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। अच्छा, इसमें जो अहम तरीन तरीके हैं तब्दील कर देंगे, इसमें यह है कि आपने हर एक आदत को खुशी या तकलीफ के साथ अटैच करना है। यह अफलातून ने कहा था कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं या वो तकलीफ से बचें या खुशी की तलाश में। इसी चीज़ को यूरोप वाले NLP में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं आपने जो भी आदत तब्दील करनी है, जो आदत बुरी है उसे पेन के साथ अटैच कर दें। कि मसलन वो हीरोइन नोशी करने वाले को हीरोइन नोशों की फिल्में दिखाते हैं,
उन्हें बुरी हालत में, उन्हें मांगते हुए, उन्हें मरते हुए दिखाया जाता है। तो वो उन्हें जब ये चीज़ें देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि अगर मैं इस हादसे से ना रुका तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। इसी तरह शराब नोशों को भी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये मुख्तसर तौर पर मसलन कोई बंदा मोटा है तो उसे हाथी नुमा जिस्म दिखाया जाता है, तो वो बंदा फिर उसको समझ आ जाता है कि अभी मैं इतना मोटा नहीं हूं लेकिन मैं इतना मोटा हो जाऊंगा, तो वो इससे छोड़ देता है। हम सब ने ये करना है कि अपनी जिंदगी में मकसद रखना है, बड़ा गौर करके मकसद रखना है, उसकी तरफ चल पड़ना है। अगर मकसद बड़ा हो तो हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे, इतना बड़ा हो कि हमें जगाए और हमें अमल पर मजबूर करे। अब चंद एक हदायत हैं जो आपने कुव्वत इरादी को मजबूत करने के लिए हैं। नंबर 1 ये है कि रात उठने का फैसला करें तो अलार्म होते ही रात को उठ जाए। 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ जाना आपने। दूसरा, किसी से कोई अहद करें तो सोच कर करें और उसे जरूर पूरा करें। और फिर आपने कोई काम अहद किया है, जैसे मैंने कहा मैं रोज वॉक करूंगा, अगर एक दिन मिस हो जाता है दूसरे दिन मिस आपने नहीं करना है, यदि अपने अहद पर कायम रहे। अगर आपने 2 दिन मिस किया तो आप इसे छोड़ देंगे। नंबर 3, इसमें एक बहुत मददगार चीज ये है कि आपने हर कदम पर सच बोलने का फैसला करना है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपके लिए कोई भी गलत आदत छोड़नी बड़ी आसान होगी। एक बहुत दिलचस्प और कीमती मिसाल हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलती है। वो ये थी कि आपके पास एक आदमी आया, उसने इनसे कहा कि मैं बहुत बुरी आदतों में मैं मसरूफ हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं ज़िना करता हूँ, कुछ बताएं कि मैं इसे छोड़ जाऊँ। तो आपने उसे कहा, वो कहते वो जो साहबी थे, वो ज़ाहिर है आपको मिलने वाला बंदा साहबी था जो मुसलमान भी था, तो वो कहते हैं कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छूट नहीं रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि तुमने हर कदम पर वादा करोगे, सच ही बोलोगे। उसने कहा ये मैं कर सकता हूँ। तो जब उसने सच बोलने का अहद कर लिया तो उसके कुछ अरसे बाद वो साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप वो आते छूट गई, क्यों मुझे पता है कि जब मैं ज़िना करूँगा तो मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बताऊँगा मैंने ज़िना किया है, मैं जुआ खेला हूँ तो मैं कहूँगा मैंने जुआ खेला है। तो इस वजह से मैंने वो तमाम गलत आदतें मेरे से छूटती चली गई। फिर इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें कि मैंने अक्सर, चौथी जो शर्त है, मैंने अक्सर गुनाहगार लोगों की कुव्वत इरादी बहुत कमज़ोर देखी है। गुनाह हमारे ज़हन पर बहुत बोझ डाल देता है, इस बोझ की वजह से हम बहुत सी एनर्जी से महरूम हो जाते हैं और अपनी मुस्बत सोच और पावरफुल शख्सियत से महरूम हो जाते हैं। तो अपने गुनाह से तौबा करें और अगर बड़ा गुनाह किए इसका कुफारा अदा करें। गुनाह हमारी बहुत सी ताकत को ख़त्म करता चला जाता है और नेकियां हमें बहुत सी ताकत देती हैं। बस ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने आखिर में बयान की हैं। ये चंद चीज़ें ज़हन में रखकर अपने इरादों पर अमल करने का फैसला करें और इसका सफ़र शुरू कर दें। याद रखें कि अल्लाह की दुनिया में हर काम मुमकिन है और इंसान के लिए, खुसूसन मर्द मुसलमान, दुनिया में हर काम को कामयाबी और आसानी से